تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہمراہ گچی میں قومی یوم سائنس کے موقع پر سائنس نمائش کا افتتاح انجام دیا۔ جمعہ کو قومی یوم سائنس کے موقع پر گچی اسٹیڈیم میں نمائش وگیان آئیبھو 2025 کا انعقاد عمل میں آیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہمراہ نمائش کا افتتاح انجام دیا۔ دونوں قائدین نے عبدالکلام اور سر سی وی رمن کے مجسموں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس نمائش میں ڈی آر ڈی او، ایروناٹیکل سوسائٹی آف انڈیا اور کلام انسٹی ٹیوٹ آف یوتھ ایکسیلنس نے مشترکہ طور پر دفاعی مصنوعات کی نمائش کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی سائنسی نمائشوں کے انعقاد سے طلباء دفاعی نظام کے بارے میں مزید سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ نمائش 3 روز تک جاری رہے گی، جس میں 200 سٹالز لگائے گئے ہیں۔ نمائش کو دیکھنے کے لیے اسکولوں اور انجینئرنگ کے طلباء سمیت 30,000 افراد نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ یہ نمائش طلباء کو فوجی ساز و سامان کے کام کرنے اور ان کی تیاری کے عمل کے بارے میں بھی آگاہ کرے گی۔ عام لوگوں کو 1 اور 2 مارچ کو نمائش دیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی لیڈر راجا سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس کی حکومت کے قیام کے بعد سے ریاست میں خواتین غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ سنگا ریڈی ضلع کے سداشیو پیٹ کے قریب ایک خاتون کے بہیمانہ قتل پر بی جے پی ایم ایل اے راجا سنگھ نے رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کانگریس حکومت پر تنقید کی۔ راجا سنگھ نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس کی حکومت کے قیام کے بعد سے ریاست میں ہر روز قتل، چوری اور خواتین کی عصمت دری کی وارداتیں پیش آ رہی ہیں اور خواتین غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ راجا سنگھ نے کہا کہ سنگا ریڈی میں والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی تلنگانہ کی عوام کی فلاح و بہبود کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ احیاء مجلس کی 66 سالہ جشن تقاریب اور تقریب پرچم کشائی ہفتہ 1 مارچ کو دارالسلام میں منعقد ہوگی۔ رمضان المبارک کا آغاز 2 مارچ سے ممکن ہے، اسی لیے احیاء مجلس کی 66 سالہ تقاریب ایک دن قبل ہی یعنی 1 مارچ بروز ہفتہ کو منعقد کی جا رہی ہیں۔ اسی ضمن میں معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد پارٹی کی پرچم کشائی انجام دیں گے اور خصوصی خطاب کریں گے۔ اکبر الدین اویسی مجلسی فلور لیڈر بھی اس تقریب سے خطاب کریں گے۔ احمد پاشا قادری نے بتایا کہ احیاء مجلس کی 66 سالہ تقاریب اور رسم پرچم کشائی کے سلسلے میں دارالسلام کے احاطے میں اندرونی اور بیرونی حصے میں آنے والوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی کے تحت چلائے جانے والے مدرسہ اقرا تعلیم القرآن و دینیات و لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ سینٹر کا سالانہ جلسہ کامیابی سے منعقد کیا گیا۔ نامپلی علاقے میں واقع مسجد بغدادی ٹیک میں مولانا مفتی احمد محی الدین کی صدارت اور سید منیر الدین احمد مختار صدر تولیت کمیٹی مسجد بغدادی ٹیک کی زیر نگرانی مدرسہ اقرا تعلیم القرآن و دینیات و لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ سینٹر کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ملپلی ڈویژن کارپوریٹر ظفر خان اور خلیل الرحمان ڈائریکٹر نیو ماڈل ہائی اسکول مہمان اعزازی رہے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ بیت المال کی جانب سے 2 مستحق طالبات کو سلائی مشینیں دی گئی۔ صدر جلسہ نے اپنے خطاب میں علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ ہنرمند ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسی خواتین جو خود ہنر کے ذریعے کمائی کر کے گھر چلاتی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ مہمان خصوصی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے بھی اس موقع پر
खिताब किया और कहा कि वो मस्जिद के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले इदारों की कारकर्दगी की सताइश करते हैं। उन्होंने मस्जिद के जो भी तरक्याती काम हैं उन तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने का यकीन दिलाया है। मस्जिद हाजा के मोहतमद की जानिब से मेहमानान का शुक्रिया अदा किया गया। करीमनगर जिले में इंतखाबी अमले को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए हैं, 2 की हालत नाजुक है। तफसीलात के मुताबिक जिले करीमनगर में जुमे की अलस सुबह गंगाधर एक्स रोड के कोडी मियाला मंडल के नामली कोंडा में 2 बसों के दरमियान तसादुम हुआ। 20 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बस ड्राइवर और इंतखाबी अमले का एक रुकन शदीद जख्मी हो गए हैं। दोनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। निर्मल जिले का अमला जो MLC इंतखाबात के फराइज अंजाम देने के बाद बैलेट बॉक्स देने के लिए करीमनगर का सफर कर रहा था, हादसे का शिकार हो गया। करीमनगर की कलेक्टर पामेला सतपति और कई दीगर ओहदेदारों ने जख्मियों की इयादत की है और सूरत हाल का जायजा लिया है। निर्मल के कलेक्टर ने भी जख्मियों की मिजाज पुरसी की है। नागर कर्नूल SLBC टनल में फंसे एक कारकुन के रिश्तेदार ने उम्मीद जताई है कि हुकूमत तमाम 8 कारकुनों को बचाकर उन्हें अहले खाना के हवाले कर देगी। नागर कर्नूल की SLBC टनल में फंसे कारकुनों में से एक गुरप्रीत सिंह के रिश्तेदार कुलदीप सिंह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सुरंग के अंदर फंसे 8 आदमियों में से एक का ताल्लुक रियासत पंजाब से है। कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरप्रीत सिंह उनके भतीजे हैं और वो पिछले 20 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। उनके खानदान में माँ, बीवी और 2 बेटियां हैं जो उनकी मुंतसिर हैं। कुलदीप सिंह ने उम्मीद जताई है कि हुकूमत अंदर फंसे तमाम 8 अफराद को बचाकर उन्हें अहले खाना के हवाले कर देगी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने 4 डिवीजन्स दबीरपुरा, छौनी, नादे अली बेग, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। याकुतपुरा हल्के को मिसाली असम्बली हल्के में तब्दील करने के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जाफर हुसैन मेराज ने अपने हल्के के 4 बल्दी डिवीजन्स दबीरपुरा, छौनी, नादे अली बेग, कुरमागुड़ा और संतोष नगर में 3,70,43,000 रुपये मालियती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। दबीरपुरा दरवाजे से तरक्याती कामों का आगाज किया गया। तरक्याती कामों में आबरसानी और सीवरेज की लाइन, CC रोड की तामीर और लाइटनिंग की तनसीब वगैरह शामिल हैं। रुकन असम्बली याकुतपुरा के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, यूथ लीडर्स और सरगर्म कारकुनान, इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान व दीगर भी मौजूद रहे। कई मुकामात पर तरक्याती कामों का आगाज अमल में आने पर मजलिसी कायदीन की गुलपोशी और शाल पोशी की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने भद्रादरी कोत्तागुडम जिले में एक सरकारी स्कूल पर छापा मार कर स्कूल हेडमास्टर को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि ACB के ओहदेदारों ने जुमा को भद्रादरी कोत्तागुडम जिले के कोत्तागुडम कस्बे के कोली लाइन गवर्नमेंट स्कूल पर छापा मारा और स्कूल HM को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके नतीजे में 8 मजदूर जख्मी हो गए। ज़राये ने बताया कि कल रात हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसके बाद सनसनी फैल गई। ज़ेर तामीर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का तौसी हिस्सा अचानक गिर जाने की वजह से वहां काम करने वाले कुछ मजदूर मलबे के नीचे फंस गए। फौरी तौर पर साथी मजदूरों ने उन्हें मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की और पुलिस को मतला किया गया। पुलिस ने मुकाम पर पहुंचकर मजदूरों को मलबे से निकाल कर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे में 8 मजदूर जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुकाम ने खजूरों के अंदर छुपाकर सोना स्मगल करने की कोशिश पर एक शख्स को हिरासत में ले लिया है।
कस्टम्स हुकाम ने बताया कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक 56 साल शख्स को अपने सामान में खजूरों के अंदर छुपाकर 170 ग्राम से ज्यादा सोना स्मगल करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि जिद्दा से आने वाले शख्स के पास कई किलोग्राम खजूरें थी और जब खजूरों की मुकम्मल जांच की गई तो सोने के छोटे छोटे टुकड़े बाहर आए। खजूरों को काट कर उसमें सोना छुपाया गया था। ओहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 170 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी मालियत 15 लाख रुपए है। कस्टम्स हुकाम ने दीगर 2 मामलों में भी एक हिंदुस्तानी शख्स को पेस्ट की शक्ल में 1 करोड़ रुपए मालियती सोना स्मगल करने और 2 थाई खवातीन को 27 करोड़ रुपए मालियती चरस स्मगल करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बैंकर्स के तिमाही जायजा इजलास में शिरकत की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में बैंकर्स का तिमाही जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उभरते हुए तेलंगाना में बैंकर्स का रोल अहम रहा है। दरियासना कई तजावीज़ात पेश की गई। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई शोबे को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने और दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 2 मार्च को वनापर्ती में बैंकर्स के साथ मिलकर 6000 करोड़ रुपए की खुद रोजगार स्कीमात का आगाज करेंगे। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कर्ज माफी के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं, जो कि एक तारीखी काम है और मुल्क की किसी और रियासत में इस तरह का काम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर से नई दिल्ली में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन देर हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। बताया जाता है कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन इस साल के आखिर तक एक आज़ाद तिजारती समझौते को ख़तई शक्ल देने पर गौर ख़ौज कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि इस साल के दौरान इस पर पेशरफ्त की जाएगी। उर्सुला वैन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान एक आज़ाद तिजारती समझौता अपनी नौयत का दुनिया भर का सबसे बड़ा समझौता होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के पास ये एक तारीखी मौका है कि वो भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप राहदारी का आगाज़ करें। यूरोपीय कमीशन की सदर ने यह भी कहा है कि यूरोप सलामती और दिफा के लिए मज़ीद जिम्मेदारी संभालने को भी तैयार है। AICC रहनुमा मीनाक्षी नटराजन, जिन्हें हाल ही में तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, बज़रिए ट्रेन शहर हैदराबाद पहुंची। मीनाक्षी नटराजन को हाल ही में तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। वो जुमा को बज़रिए ट्रेन हैदराबाद पहुंची। काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ व दीगर कायदीन ने शाल पोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसी एग्जीक्यूटिव इजलास में शिरकत करेगी। दरियासना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचकर रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की है। भारत राष्ट्रीय समिति की MLC की कविता ने कहा कि BRS कारकुनों और रहनुमाओं पर हमला करने वालों के नाम गुलाबी किताब में लिखे जाएंगे ताकि वक्त आने पर उनकी शिनाख्त की जा सके। की कविता ने कोल्हापुर मंडल के संगोतम गांव में साबिक MLA B हर्षवर्धन रेड्डी और MLC नवीन कुमार रेड्डी के साथ मीडिया से बात की और कहा कि BRS रहनुमाओं और कारकुनों पर हमला करने वालों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। उनके नाम गुलाबी किताब में लिखे जाएंगे ताकि वक्त आने पर उनकी शिनाख्त की जा सके। BRS रहनुमा ने हुकूमत से अपोजिशन पार्टियों पर हमला करना बंद कर देने और तरक्की पर तवज्जो देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के लिए खड़े होने वाले किसी भी लीडर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें हरासा किया जा रहा है। हुकूमत की तश्कील के बाद से BRS रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। की कविता ने वजीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और पुलिस से भी BRS कायदीन पर हमलों के मामले में कोई पेशरफ्त न करने का इल्जाम लगाया। कातिलों को
शय देने पर नुक्ताचीनी की। नागर कर्नूल जिले में एसएलबीसी सुरंग हादसे के 7वें रोज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी रही। 8 कारकुनों को बचाने के लिए हिंदुस्तानी फौज, बहरिया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हाइड्रा, सिंगारेनी टीमों और माहिर कारकुनों की जद्दोजहद जारी है। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में एक जेर तामीर सुरंग की छत गिरने से 8 अफराद के मलबे तले फंस जाने के 7 दिन बाद जुमा को भी तलाशी मुहिम जारी रही। इसमें जिंदा बच जाने का कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। जुज़वी तौर पर मुनज़्ज़म होने वाली सुरंग में 12 एजेंसियों की जानिब से बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। मिट्टी और मलबे को हटाया जा रहा है। हिंदुस्तानी फौज, बहरिया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हाइड्रा, सिंगारेनी और उनके साथ साथ माहिर कारकुनों की टीमें हैं जो सुरंग के सिरे तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही है। रेस्क्यू टीमें टनल बोरिंग मशीन के मलबे को हटाने के लिए भी सख्त मेहनत कर रही हैं। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के डायरेक्टर वीवी श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना का महकमा जेल मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। शहर हैदराबाद में वाक़ चंचलगुड़ा जेल के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के डायरेक्टर वीवी श्रीनिवास राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और जेल के अमले में जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जराइम पर काबू पाने और जराइम की रोकथाम के लिए अदालत, जेल, पुलिस और फॉरेंसिक महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से महकमे जेल में इनकलाबी तब्दीलियाँ आई हैं। श्रीनिवास राव ने मजीद कहा कि मुल्क की सिर्फ 5 रियासतों की जेलों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन रियासतों ने दीगर रियासतों की जेलों के लिए एक मिसाल कायम की है। डीजी जेल डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने भी कहा कि रियासती हुकूमत महकमा जेल में जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए काम कर रही है और इसी के एक हिस्से के तौर पर रियासत की तमाम जेलों को जदीद टेक्नोलॉजी के आलात फराहम किए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा की लेक व्यू हिल्स कॉलोनी में एक प्लास्टिक के गोदाम में मुहिब आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। ज़राए ने बताया कि बंडलागुड़ा की लेक व्यू हिल्स कॉलोनी के एक प्लास्टिक के गोदाम में जुमे की सपहर आग लग गई। गोदाम से धुएं के कसीफ बादल उठते देख मुकामी लोग खौफजदा हो गए और मुलाजमीन भी अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आतिशप्रो अमले को मतला किया। चंद्रानगुट्टा फायर स्टेशन से फायर टेंडर मौके पर पहुंचा और आतिशप्रो अमले ने अंदरून 30 मिनट आग पर काबू पा लिया। वाज़ेह है कि गोदाम एक रिहायशी इलाके में वाक़ है और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के इस वाक़े ने लोगों को खौफजदा कर दिया। इस वाक़े में खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदेशा है। बंडलागुड़ा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने वाज़ेह किया है कि पार्टी में कोई अंदरूनी सियासत नहीं है। शहर हैदराबाद का दौरा कर रही तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी सियासत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं है। मीनाक्षी नटराजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में बूथ सतह के कारकुनों से लेकर कौमी सतह के सियासी कायदीन तक बहुत ज़्यादा जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में मुल्क में कहीं भी लीडरों का इख्तलाफ राय होना एक आम सी बात है। मीनाक्षी नटराजन ने मजीद कहा कि वो तेलंगाना कांग्रेस में अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम करेंगी और AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि वो राहुल गांधी की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारियों को मौजूद तरीके से पूरा करेंगी और उनके ख्यालात को लोगों तक पहुंचाएंगी। सिद्दीपेट जिले के गजवेल RDO ऑफिस के रूबरू एरावली गांव के मुसलमानों ने मैयत के साथ एहतजाज दर्ज करवाया और तदफीन के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि एरावली गांव को हुकाम की जानिब से कब्रस्तान फराहम न करने से मुसलमानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी मुसलमानों ने पिछले 4 सालों से
انہیں قبرستان مختص نہ کرنے پر مایوسی ظاہر کی اور کہا کہ حکام بارہا نمائندگی کے باوجود اس جانب توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جمعہ کو ناراض مسلمانوں نے میت کے ساتھ گجویل RDO آفس کے سامنے احتجاج کیا اور تدفین کے لیے جگہ مختص کرنے کا مطالبہ کیا۔ محمد عبید اللہ کوتوال صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن نے بتایا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی 2 مارچ کو وناپرتی ضلع میں سلائی مشینیں تقسیم کریں گے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے صدر نشین محمد عبید اللہ کوتوال نے جمعہ کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی 2 مارچ بروز اتوار وناپرتی ضلع میں سلائی مشینوں کی تقسیم پروگرام میں حصہ لیں گے اور سلائی مشینیں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 10,490 سلائی مشینیں تقسیم کی جائیں گی اور دوسرے مرحلے میں 9,031 مشینیں تقسیم ہوں گی۔ محمد عبید اللہ کوتوال نے یہ بھی بتایا کہ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن تعلیم یافتہ اور بے روزگار اقلیتوں کے لیے ہنرمندی کی تربیت کا انعقاد کر رہی ہے۔ تربیت کی تکمیلی کے بعد اسکیم کے تحت ملازمتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی جانب سے فقیر و دیگر کمزور مسلم طبقات کے اراکین کی ترقی اور تلنگانہ ریاست کے تمام اضلاع میں رہنے والے طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے مالی امداد کی اسکیم پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں خشک میوجات خاص طور پر کھجوروں کی فروخت کے لیے مشہور کشمیر ہاؤس کی جانب سے تمام گاہکوں شہریان حیدرآباد اور تلنگانہ کی عوام کو رمضان کی مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے افضل گنج میں واقع کشمیر ہاؤس خشک میوجات اور باسمتی چاول کی ہمہ اقسام کی خرید و فروخت کے لیے جانا جاتا ہے۔ کشمیر ہاؤس کے مالک راج کمار نے اپنے تمام صارفین تلنگانہ اور حیدرآباد کی عوام کو رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال کھجوروں کی نئی اقسام دستیاب ہے جو کہ ایران اور عراق سے منگوائی گئی ہیں۔ سعودی عرب اور دبئی سے بھی کھجوروں کی اقسام منگوائی گئی ہیں جن کی قیمتیں انتہائی مناسب ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ شہریان حیدرآباد کی اکثریت کشمیر ہاؤس سے ہی خشک میوجات کی خریداری اور باسمتی چاول کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ خاص طور پر ماہ رمضان میں کشمیر ہاؤس پر ہمہ اقسام کی کھجوریں دستیاب رہتی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،